أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ، ہم غریبوں کی آقا، ہم فقیروں کے داتا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، رب حبلی امتی کے صدا لگانے والے آقا، گرمی حشر میں اپنے دامن میں چھپانے والے آقا، میدان محشر میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلانے والے آقا، آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں جنہیں جو درود پاک یاد ہے، جی لگا کر ایمانداری کے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا حبینا و مولانا محمد باغ سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ حضرات، جلسہ آل رسول کانفرنس میں ہماری اور آپ کی حاضری ہوئی ہے، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ اس ذات کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے ہیں جن کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس ذات کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں جن کی انگلیوں کو پکڑ کر میں نے چلنا اور بولنا سیکھا۔ سبحان اللہ۔ پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضور الشاہ الحاج سید ڈاکٹر ناہید احمد حیدر القادری سجادہ نشی، خانقاہ حیدریہ حسن پورہ شریف، خانقاہ حیدریہ کا وہ دولہا آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے۔ آپ ان کے چہرے مبارک کو دیکھیے جن کی سرپرستی میں یا آج کی عظیم الشان کانفرنس ہو رہا ہے، اور آج کی عظیم الشان جلسے کی صدارت حضرت علامہ اشرف صاحب قبلہ کر رہے ہیں، ممبر ان پہ جلوہ بار ہیں، دیگر علماء کرام کی نورانی ٹیم ہے۔ میں سب کا نام نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا کہ جن کے دل میں نبی کی محبت ہے وہ ہر دور میں کامیاب اور کامرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑی دیر میری تقریر ہوگی، حضور کی آمد ہے صاحب، ان کی موجودگی میں تھوڑی دیر میری تقریر ہوگی۔ صاحب یاد رکھیں، یہ آپ جلسہ سجائے ہیں نا، یہ کبھی نہ خیال رکھے کہ حضرت آئیں گے تو ہم یہ آئیں گے تو صاحب یہ دیکھ لیں گے، انہیں دکھا کر ہم کسی شاعر کو انعام دیں یا کوئی خطیب بولے یا کوئی شاعر بولے، نا صاحب نا، دل دیکھا جاتا ہے۔ دل سے آپ پڑھیں گے صاحب، اللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آپ کا آخرت بھی سنور جائے گا۔ صاحب یہ آل رسول ہے، یہ دعا کر دینا تو صاحب یقیناً بریلی کے امام لکھتے ہیں، وہ امام جنہوں نے بچایا ہم سنیوں کا ایمان، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر یوں مد سرا ہوتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ صاحب کبھی کبھی بات اچھی لگ جائے نا تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیجئے گا، کیونکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن پاک کی ایک حرف پڑھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور سبحان اللہ کہنا یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ آپ ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ ایک نیکی نہیں، 2 نیکی نہیں بلکہ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے صاحب، یہ اس جلسے کو آپ نے سجایا ہے، ماشاءاللہ یہ نوجوان ہے نا، کتنی محنت سے مختصر وقت میں اس جلسے کو صاحب اتنے بڑے کانفرنس کو انہوں نے کرایا۔ یاد رکھیے صاحب، جو جلسہ دیکھنے آئے تھے چلے گئے، جو سننے آئے ہیں اور آل رسول کو دیکھنے آئے ہیں وہ اب تک موجود ہیں، بے شک صاحب موجود ہیں۔ صاحب جناب شاکر صاحب ہیں، یہ صاحب یہ لوگ مل کر اس جلسے کو صاحب سجایا ہے۔ یاد رکھیے صاحب، اس کے صدقے میں اللہ ہم سب کی بخشش
बख्शिश अता फरमा देगा। साहब ये अपने पीर के नाम पे इस जलसे को सजाया है साहब। किसी ने लिखा है ना कि बहुत ही खूब मैं खाना नबीले मिल्लत का। हाय 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 हाय। कम से कम सरकार नबीले मिल्लत के नाम पे तो बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत ही खूब मैं खाना नबीले मिल्लत का, मचल कर बैठा है मस्ताना नबीले मिल्लत का। हाय हाय। शाकिर साहब और हमारे साहबुद्दीन भाई चले गए क्या? माशाल्लाह। अच्छा वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत साहब बहुत ही खूब मैं खाना नबीले मिल्लत का, मचल के बैठा है मस्ताना नबीले मिल्लत का। मेरा ईमान है हरगिज वो रुस्वा हो नहीं सकता। मेरा ईमान है हरगिज वो रुस्वा हो नहीं सकता। जो सच्चा पक्का दीवाना है नबीले मिल्लत का, जो सच्चा पक्का दीवाना है नबीले मिल्लत का। मेरा ईमान है वो रुस्वा हो नहीं सकता। मेरा ईमान है वो रुस्वा हो नहीं सकता। जो भी है सच्चा पक्का दीवाना नबीले मिल्लत का। साहब आले रसूल के चेहरे को देख रहे हैं, साहब शहजादा हुजूर नबीले मिल्लत के चेहरे को देख रहे हैं। याद रखिए साहब ये अल्लाह वाले हैं, दीन की तबलीग के लिए अपने घर को छोड़ देते हैं, हुकूमत को छोड़ देते हैं, दौलत को ठोकरे मार देते हैं। सिर्फ ये फिक्र होती है अगर दीन की तबलीग नहीं हुई मैदान महशर में अगर रब पूछ दे तो हम अपने चेहरे को कैसे दिखाएंगे। याद रखिए साहब ये अल्लाह वाले हैं, इनसे मोहब्बत कीजिए। ये कभी ना सोचिएगा हम इस जलसे को सजाए हैं, हम इस जलसे को सजाए हैं तो रब नहीं देख रहा है। तारीख उठाकर देखे साहब, गौसे पाक की तारीख उठाए। गौसे पाक के बारगाह में उनका मुरीद रहता था जिनका नाम हजरत शेख बरखी है। 23 साल से सरकारे गौसे पाक के मेहमानों को पानी पिलाया करते थे। एक दिन दिल ने कहा न जाने से बगदाद ही के लोग हमें जानते हैं कि और लोग जानते हैं। अपने सरकारे गौसे पाक के बारगाह में पहुंच गए। कहा हुजूर मैं तो 23 साल से आपके मेहमानों का खिदमत कर रहा हूँ। मेरा दिल कह रहा है कि मैं मक्का जाऊं और हज करने जो जाए, अल्लाह के मेहमान जो जाए हम उनकी खिदमत करें। साहब वाकया सुनाना मकसद मैं आपको बताना चाहूंगा। सरकारे गौसे पाक ने कहा जाना चाहते हो तो चले जाओ। रास्ते में जब निकले ना तो रास्ते में एक और शख्स से मुलाकात हुई। कहाँ चले हो? कहा मक्का चला हो। कहा मैं भी मक्का चला हूँ। जब शाम हो गई इशा की नमाज पढ़ने के बाद हजरत शेख बरखी अपने साथी से कहते हैं भूख लगी है कहीं से खाना मंगवाओ। उन्होंने कहा भूख लगी है? उन्होंने कहा जाओ हाथ धुल कर आओ, मैं अभी खाना मंगवाता हूँ। हाथ धुल कर आओ। अब वो हाथ धुल कर शेख बरखी हाजिर हो गए। इन्होंने अपने हाथ को उठाया, न जाने दुआ में क्या कहा। अल्लाह ने आसमान से एक टिफिन में खाना भेज दिया। अब ये खाना खा लिए, फजर के नमाज पढ़े, फिर चलने लगे। दूसरे दिन भूख लगी। कहा भूख लगी है खाना मंगवाओ। कहा हाथ धुल कर आओ मैं खाना मंगवाता हूँ। 3 दिन तक खाना आता रहा। चौथे दिन हजरत शेख बरखी ने कहा था साहब आज भूख लगी है आप खाना मंगवा दे। साथी ने कहा था 3 दिन से मैं मंगवा रहा हूँ, आज आपकी बारी है, आज आप मंगवाए। इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ। कहा जाओ हाथ धुल कर आओ, मैं अभी खाना मंगवाता हूँ। जब वो हाथ धुल कर आए हजरत शेख बरखी है अपने हाथ को उठाए हैं, न जाने दुआ में क्या कहा है। अल्लाह ने पहले और दूसरे तीसरे दिन एक आदमी का खाना दे रहा था। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 टिफिन में खाना भेज दिया। खाना जब आ गया, जब खाना शुरू करना चाहा, हजरत शेख बरखी के साथी ने कहा ए मेरे भाई मैं तो रोजाना दुआ करता था, एक टिफिन में खाना आता था, मगर आज आपने दुआ किया तो 2 टिफिन आ गया। आपने दुआ में क्या कहा? कहा साहब मैं कुछ नहीं कहा। कहा क्या कहा जरा बता दो। कहा पहले आप बता दें इसलिए आपके 2 टिफिन खाना आया है। कहा मैंने जानते हो दुआ में क्या कहा? कहा मालिको मौला हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, मगर मौला मेरा साथी रोजाना जिसके सदके में खाना मांगता था मौला उसी के सदके में आज भी खाना अता कर दे।
खाना दे दिया। हजरत शेख बरखी ने कहा आपने दुआ में क्या कहा? कहा मैं कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ओ मौला उसके सदके में खाना दे दे जो हजरत गौसे पाक के मेहमानों को 23 साल से जो पानी पिला रहा है, मौला उसी के सदके में हमें खाना अता कर दे। जब हजरत शेख बरखी कहा, मैंने कहा जो सरकार गौसे पाक के मेहमानों को 23 साल से पानी पिला रहा है, मौला उसके सदके में खाना दे दे। हजरत शेख बरखी बैठे थे, खड़े हो गए, कहा ओ मेरे साथी ये मेरा भी सामान ले लो, यहाँ से तुम मक्का जाओ, अब मैं लौट रहा हूँ। कहा क्या हुआ? कहा वो जो गौसे पाक के मेहमानों को 23 साल से पानी पिला रहा है वो कोई और नहीं है बल्कि वो मैं ही हूँ, इसलिए मक्का जा रहा था कि मुझे तो सिर्फ बगदाद के लोग ही जानते हैं, मक्का जाऊंगा पूरी दुनिया के हाजी जानेंगे। मगर आज पता चल गया इंसान तो इंसान है, फरिश्ते भी हमें जान। सुभान अल्लाह, वाह 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 साहिबो, हम हमारे नबीले मिल्लत से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। याद रखिए शैतान कभी नहीं चाहेगा कि नौजवान तकरीर सुने। जब नौजवान तकरीर सुनेगा माँ की खिदमत करनी होगी, बाप का अदब करना होगा। याद रखिए साहब, आज तो साहब हमारे बच्चे साहब बाप की इज्जत नहीं करते। आज लोग ताबीजें लिखवाते हैं, मौलाना एक ताबीज लिख दो मेरी औलादे वफादार नहीं है। याद रखिए साहब, हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। आज साहब पूरी भारत में, आज पूरी दुनिया में हम साहब पीछे हैं, हम पढ़ते नहीं है, हम साहब खेलने में आगे हैं। मैं तो एक दिन सोच रहा था ये वर्ल्ड कप का जमाना जो चल रहा था, बूढ़े को देखो वो भी वर्ल्ड कप में लगा था, जवान को देखो वो भी लगा था। मैं सोच रहा था कि दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, मगर याद रखिए साहब कोई अमेरिका का टीम वर्ल्ड कप खेल रहा है, कोई रसिया खेलता है, कोई चाइना मैच खेलता है, वो जानते हैं इन्हें खेल कूद में लगा दो और अपने बच्चों को साइंटिस्ट बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, खेल कूद में ये लगेंगे। और जब चांद पे जाने की बात आएगी तो ये नहीं जाएंगे बल्कि हमारे बच्चे जाएंगे, हमारी औलादें जाएगी। याद रखिए साहब, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, कम खाएं मगर अपने बच्चों को तालीम दें। आज हमारी औलादें हमारी कदर नहीं करती। जब बच्चा कुरान पढ़ेगा, कुरान ने कहा माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, तो बेटा माँ की कदर करेगा, बेटा बाप की इज्जत करेगा। आज समाज में इतनी बुराई है साहब, बाप दवा की 2 घोट के लिए तरह जाता, बेटा बाप का इलाज नहीं कराता, माँ एक कपड़े के लिए तरह जाती, बेटा माँ के कपड़े का इंतजाम नहीं करता। जो ही माँ बाप का इंतकाल हो जाए ना तो माँ बाप के मरने पे 5-5 हजार लोगों को बुलाकर खाना खिलाता है। आज आना मेरे बाप का 40वां है, आना मेरी माँ का 40वां है। मैं कहता हूँ साहिबो याद रखना, जब माँ बाप दुनिया में मिले तो उनकी खिदमत करके दुनिया ही में जन्नत हासिल कर लो, और जब माँ बाप दुनिया से चले जाए तो 500 लोगों को बुलाकर न खिलाना, बाप 1000 लोगों को बुलाकर न खिलाना, रमन कंपनी के कफन न देना, बल्कि माँ के मरने के बाद उसे ले जाकर दफन कर देना। माँ के 40वें पे गरीबों को बुलाकर खाना खिलाना, यतीमों को कपड़ा पहनाना, मदरसे के बच्चों को बुलाकर कुरान की तिलावत कराना, और उसी पैसे को बचाकर अपने मदरसे में जाना और अपने माँ बाप के नाम पे गरीब बच्चे को हाफिज कुरान बनवा देना। कसम खुदा के उस पैसे से एक बच्चा हाफिज बनेगा, कुरान पढ़ेगा, नूरी फरिश्ते आपके माँ बाप के कब्र में नूर लेकर उतरेंगे। दूसरे कब्र वाले पूछेंगे बता कौन सा अमल करके आया था कि तेरे कब्र में नूरी फरिश्ते आ रहे हैं, तो आपके माँ बाप कहेंगे कोई ज्यादा अमल करके नहीं आया था बल्कि नेक बेटा छोड़कर आया था जो दुनिया में भी मुझसे मोहब्बत करता था, और मेरे मरने के बाद मेरे 40वें और 20वें पे 500 लोगों को बुलाकर नहीं खिलाया है, गरीब
नूर से रोशन हुआ सबका पता, इल्म की बातें पूछ आलिमों से, ये भंग पीते मलंगों को क्या इल्म का पता, ये भंग पीते मलंगों को क्या इल्म का पता। साहब याद रखिए साहब, माँ से मोहब्बत कीजिए साहब। किसी ने कहा ना, पूरी दुनिया की नेमतें जहाँ सिमट कर इकट्ठा होती है, पूरी दुनिया की खूबसूरती जहाँ इकट्ठा होती है, उसे जन्नत कहा जाता है। और रब ने पूरी जन्नत को जिसके कदमों में रख दिया, उसी को माँ के कदमे मुबारक कहा। किसी ने लिखा कि माँ ना होगी तो वफा कौन करेगा, ममता का हक अदा कौन करेगा। खुदा हर एक ही माँ बाप को सदा सलामत रखना, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। याद रखिए साहब, माँ जब तक राजी ना हो, अल्लाह हमारी इबादत कबूल नहीं करेगा। बाप जब तक राजी ना हो, अल्लाह हमारी इबादत कबूल नहीं करेगा। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर माँ से ज्यादा मोहब्बत करूं कि बाप से ज्यादा मोहब्बत करूं। आला हजरत ने कहा, मोहब्बत की बात करते हो तो सुनो, माँ से ज्यादा मोहब्बत करना, इसलिए तेरी जन्नत तेरे माँ के कदम के नीचे है। और बाप का अदब ज्यादा करना, इसलिए तेरा बाप तेरा भी हाकिम है और तेरा बाप तेरी माँ का भी सुभान अल्लाह, तेरा हाकिम है और तेरी माँ का भी हाकिम है। भारत के सबसे बड़े वली गरीब नवाज की तारीख उठाकर देखे साहब, उनके अब्बा की जिंदगी देखे साहब। गरीब नवाज के अब्बा की जब तारीख पढ़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज के अब्बा का नाम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। अपने जमाने के बहुत बड़े वली है, अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम है, मगर ड्यूटी क्या थी, माँ की खिदमत करते और अल्लाह की इबादत करते। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के अब्बा हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन जब मुअज्जिन अजान देता, पूरी दुनिया मस्जिद वजू करके जाते, मगर हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन वजू करते और माँ के पास हाथ बांध कर खड़े हो जाते। अम्मी आप मुझसे राजी हो? माँ कहती, बेटा अल्लाह तेरे जैसे हर माँ बाप को ऐसा बेटा दे। अम्मी मैं तुझसे राजी हो? माँ कहती, बेटा मैं तुझसे राजी हो। तो माँ बेटा हजरत गियासुद्दीन कहते, अम्मी जब आप मुझसे राजी हो तो आप इजाजत दो, मैं नमाज पढ़ने जाऊं। माँ कहती, बेटा अल्लाह ने हर चीज को बनाया है तो रब का मकसद है, रब ने जमीन को बनाया है, रब का मकसद है कि इंसान जमीन पे चलेंगे। अल्लाह ने कपड़ा इंसानों के लिए बनाया है, सवारी इंसानों के लिए बनाया है, खाना इंसानों के लिए बनाया है, पानी इंसानों के लिए बनाया है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को दूसरे की बुराई के लिए नहीं बनाया। अम्मी रब ने इंसान को क्यों बनाया? हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन की अम्मी कहती, बेटा रब ने कुरान में कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ए मेरे लाल, तुम मस्जिद जा रहे हो, सुन पहले तुम मेरा मुसल्ला बिछा दे, हम घर में सजदा मैं करूंगी और तुम अल्लाह के घर में जाकर सजदा करना। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के अब्बा ख्वाजा गियासुद्दीन हसन मस्जिद जाते, रब की इबादत करते, फिर घर आ जाते। एक दिन दोस्तों ने पूछा, गियासुद्दीन जब मुअज्जिन अजान पढ़ता है पूरी दुनिया मस्जिद जाती है, मगर तू वजू करके माँ के पास क्यों चले जाते हो? तो हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन गरीब नवाज के अब्बू कहते, ओ मेरे दोस्तों तुझे पता नहीं है, अल्लाह के पैगंबर ने कहा है, आमना के लाल ने कहा है, माँ बाप को राजी करके सजदा करोगे तो रब राजी हो जाएगा, और नमाज में दुरूद पढ़ोगे तो नबी राजी हो। राजी करके सजदा करोगे रब राजी हो जाएगा, और नमाज में दुरूद पढ़ोगे नबी राजी हो जाएंगे। साहब आले रसूल की चेहरे को देखिए साहब, यकीनन साहब जब इनकी जिंदगी पढ़ेंगे ना, हजरत हुजूर नाहिदे मिल्लत कभी अपने माँ के बगैर के इजाजत कहीं अपने घर से कदम नहीं निकालते थे। मस्जिद में जाते तो माँ से पूछ कर जाते, साहब से तबलीग के लिए जाते तो माँ के से पूछ कर जाते। इन्हें पता है कि माँ दुआ कर दे तो अल्लाह उस दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल कर लेता है। साहब नबी के घर वालों के चेहरे को देखे साहब, कोई अल्लाह के नबी के घर वाले से बगावत करता है, उसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाती है, आखिरत भी बर्बाद हो जाता है। अल्लाह के पैगंबर की तारीख
तारीख उठा कर देखे, अल्लाह के पैगंबर है, मस्जिद नबवी में जलवा बार है, सहाबाए कराम की नूरानी टीम है। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, वो सहाबा ये आसमान देख रहे हो, आका आसमान देख रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, वो सहाबा ये आसमान कब तक सलामत रहेगा? सहाबा मचल गए, कहा आका आपसे बेहतर कौन जानता है कि आसमान कब तक सलामत रहेगा? आका आप ही बता दे कि आसमान कब तक सलामत रहेगा। अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, वो सहाबा सुनो, जब तक आसमान में तारे रहेंगे ये आसमान सलामत रहेगा। सहाबा मचल गए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, वो मेरे आका जब तक आसमान में तारे रहेंगे ये आसमान सलामत रहेगा। आका बता दिया जाए ये जमीन कब तक सलामत रहेगी? तो अल्लाह के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, सहाबा सुनो, जब तक आसमान में तारे रहेंगे ये आसमान सलामत रहेगा, और जब तक जमीन पे मेरे घर वाले रहेंगे ये जमीन भी सलामत रहेगी, और ये जमीन वाले भी सलामत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानकाह हैदरिया, खानकाह हैदरिया, हुजूर पदोसरिया, हुजूर पदोसरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब याद रखिए साहब, नबी के घर वालों से मोहब्बत कीजिए। और साहब 2 से 4 मिनट मेरी बात सुनिए साहब, हम सिर्फ इमाम हुसैन के नारा लगाते हैं, सिर्फ गौसे पाक के नारा लगाते हैं, सिर्फ गरीब नवाज के नारा लगाते हैं, क्या कभी उनकी तारीख को हमने पढ़ा है? आज हम कहते मौलाना दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। मैं कहता साहिबो, दीन पे चलना आज मुश्किल है कि दिन पे चलना बदर के मैदान में मुश्किल था। दिन पे चलना आज मुश्किल है कि दिन पे चलना करबला के मैदान में मुश्किल था। आज साहब क्या हाल है साहब, बेटा अपने बाप की इज्जत नहीं करता। आज हमारे घर की अल्लाह के नबी ने कहा, जब तेरे बेटे या बेटी की उम्र 4 साल हो जाए उसके सामने कोई ऐसा काम न करना जो शरीयत के खिलाफ है। आज साहब एक बाप अपने बेटे को बैठाकर गलत गलत तस्वीर देखता है, कसम खुदा की वो बेटा कभी बाप का वफादार नहीं होगा। एक माँ अपनी बेटी को बैठाकर सुबह से शाम तक गलत गलत सीरियल देखती है, कसम खुदा की वो बेटी न कभी शौहर न कभी सास ससुर की वफादार होगी। याद रखिए साहब, आज तो हम कहते हैं मौलाना खुशी के दिन है, लोग खुशी में गुनाह करते हैं। आज हमारे घर की औरतें सर पे दुपट्टा नहीं रखती है, मगर साहब आज कहते करबला, आज हम कहते कि दिन पे चलना बड़ा मुश्किल है। करबला की तारीख तो जरा उठा कर देखो साहब, करबला की तारीख तो पढ़ कर देखो, तो अल्लाह हज़रत इमाम हुसैन के सरे मुबारक को यजीदी नेज़े के नोक पर लेकर जा रहे थे। काफिला दमिश्क में दाखिल होने वाला था। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत सुहैल है, दौड़े दौड़े आते हैं, देखते हैं इमाम का सर है, देखते हैं इमाम के सर है, और आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी बच्ची है जिनका नाम हजरत सकीना है। सकीना के पास आते हैं, कहते हैं शहजादी ये सर किनका है? कहा ये मेरे बाबा हुसैन का सर है, नबी के नवासे का सर है। कहा आप कौन है? कहा मेरा नाम सुहैल है, मेरा नाम सुहैल है, आपके नाना से मैं मोहब्बत करता हूँ, आपके बाबा से प्यार करता हूँ। हजरत सकीना कहती है चचा मेरे बाबा से आप मोहब्बत करते हैं? कहा हाँ मैं आपके बाबा से मोहब्बत करता हूँ। कहा चचा एक मेरा काम कर देंगे? हजरत सुहैल कहते हैं शहजादी कौन सा काम है? कहा चचा यजीदी पैसे के लालची है, मेरे बाबा के सर को लेकर जा रहे हैं। मेरे चचा सुनिए, कुछ यजीदियों को पैसे देकर और मेरे बाबा के सर को आगे करा दे। हजरत सुहैल है, कुछ पैसे लेते हैं, दौड़े दौड़े खोली के पास जाते हैं, कहते हैं खोली बता ये सर किनका है? कहा नबी के नवासे के सर है, हुसैन का सर है, हम दमिश्क लेकर जा रहे हैं। कहा ऐसा करो ये पैसा ले लो और इमाम हुसैन के सर को कुछ आगे करा दो। खोली पैसा लिया, इमाम के सर को आगे करा दिया। हजरत सुहैल फिर दौड़े दौड़े सकीना के पास आते हैं, ए शहजादी बताए आपने अपने बाबा के सर को आगे कराने के लिए कहा मैंने करा दिया। हजरत सकीना कहती है चचा दुनिया में
में तो इसका बदला मैं नहीं दे सकती, मगर नाना से कहूंगी नाना मेरे कहने पे मेरे बाबा के सर को इन्होंने आगे कराया है। मगर हजरत सकीना कहती है चचा आप पूछेंगे नहीं कि मैं अपने बाबा के सर को आगे क्यों कराया? कहा शहजादी आपने अपने बाबा के सर को आगे क्यों कराया? मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, नौजवानों तुम भी सुनो। आज साहब हम कहते शादी के मौका है मौलाना, सर पे दुपट्टा रहे या ना रहे, याद रखिए गुनाह का जिक्र करना भी गुनाह है। हम तो साहब गुनाह करते हैं, शादी हो या गम हो या खुशी हो, हम गुनाह नहीं कर सकते हैं। अपने माँ बाप अपने घर की औरतों पे ये ताकीद करना कि अपने सर पे दुपट्टा रखे। हजरत सकीना कहती है चचा जानते हैं मेरे बाबा की जब शहादत हो गई, यजीदी नेज़े के नोक पे मेरे बाबा के सर को उठाए तो मेरे फूफी के सर के दुपट्टे को छीन लिया, मेरी माँ के सर के दुपट्टे को छीन लिया। वो मेरे चचा देखे मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, ये काफिला दमिश्क में दाखिल होने वाला है और लोग मेरे बाबा के सर को देखने आएंगे, मेरे बाबा के सर पे उनकी निगाह बाद में पड़ेगी, मेरे फूफी के सर पे उनकी निगाह पहले पड़ जाएगी। इसलिए मेरी फूफी के सर पे दुपट्टा नहीं है, मैं इसलिए अपने बाबा के सर को आगे करा दिया कि जो मेरे बाबा के सर को देखने आएगा आगे से देखकर चला जाएगा, मेरी फूफी और मेरी माँ के चेहरे पे उनकी नजर नहीं पड़ेगी। हजरत सकीना ने करबला के मैदान में ये पैगाम दिया, वो मेरे बाबा से मोहब्बत करने वालों, वो मेरी फूफी से प्यार करने वाली औरतों सुनो, तुम जिस हाल में रहो, तेरे गम में घर में गम हो फिर भी सर से दुपट्टा हटने न देना, तेरे घर में खुशी हो फिर भी सर से दुपट्टा हटने नहीं देना। मेरे इमाम का सर नेज़े के नोक पर अपने मानने वालों को यह पैगाम दिया, वो मेरे आशिकों और मुझसे मोहब्बत करने वालों, देखो जितने कातिल हैं सबके सर नीचे है, तेरे इमाम का सर कल भी ऊंचा था, तेरे इमाम का सर आज भी ऊंचा। पैगाम करबला शरीफ का अब याद रखिए साहब, तभी तो किसी ने कहा कि करबला में थे अब दिल के अंदर है हुसैन, पहले तो बेघर थे अब हर घर में है हुसैन, अब हर घर में है हुसैन। याद रखिए साहब हम नबी की बताई हुए तरीकों पे चले, अपनी जिंदगी इस तरह गुजारे जिस तरह गुजारने का तरीका साहब, जिस तरह सहाबा अपनी जिंदगी को गुजारते थे। साहब आज हम कहते दिन पे चलना बड़ा मुश्किल है। आखिरी बात मेरी सुनिए साहब, आज साहब हम दस्तरखान पे जब बैठते हैं ना तो कहते मौलाना साहब नमकीन के बाद मीठा खाना नबी की सुन्नत है। मैं भी कहता हूँ साहब वो बेशक नबी की सुन्नत है, मगर यही सुन्नत याद है कि साहब दस्तरखान पे साहब खाना खाएं और नमकीन के बाद नबी की सुन्नत हम याद करते हैं। वो सुन्नत भूल गए जो पेड़ पे पत्थर बांध कर गरीबों को खिलाना, यह भी नबी का तरीका है। भूखे रहकर अपने भाइयों को खिलाना, यह भी नबी का तरीका है। जब हम साहब नबी की आमद के जश्न मनाएं, साहब इमाम हुसैन के नाम पे हम जलसा करें तो लोग कहते मौलाना इतना पैसा खर्च कर रहे हो, किसी गरीब की बेटी की शादी करा देते। मैं कहता हूँ साहब नबी की आमद पर गरीब की बेटी दिखती है। साहब बाप बेटे के वलीमे में कभी तूने तो गरीब को बुलाकर नहीं खिलाया? अल्लाह कभी खिलाया? कोई खिलाता है बेटे के वलीमे में गरीब को बुलाकर? अल्लाह के नबी ने कहा वलीमा करना, मगर उस वलीमे से कोई फायदा नहीं जिसमें गरीब आकर नहीं खाए, जिसमें यतीमों को नहीं खिलाया जाए। इसलिए याद रखिए साहब हम सहाबा की जिंदगी उठाकर देखे, सोफे की चबूतरे पे जो सहाबा बैठे कि उनकी तारीख देखे, कई कई दिन तक भूखे रहते, मगर आका आ जाते तो नबी के चेहरे को देख लेते तो भूख भी मिट जाती, प्यास भी मिट जाता, भूख भी मिट जाती, प्यास भी मिट जाता। हम उनकी जिंदगी को पढ़े और उन्हीं के घर के साहब नवासे यहाँ मौजूद है, हम इनके चेहरे को देखे साहब, हम आले रसूल से मोहब्बत करें। कुरान ने कहा फसब्बिह
بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب تم رب کے حمد و ثنا کر لو تو رب کے بارگاہ میں بیٹھ کر کثرت سے توبہ استغفار پڑھو، بے شک اللہ تیرے توبے کو قبول کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو بات ہوگی۔ پڑھ لیجئے توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ، پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا